Okay, so today we are going to discuss agreements which are expressly declared to be void. Okay, this is the last topic of this chapter. Void agreements. Okay, you can write it down. They are void ab initio. They are void ab initio. Void from the very beginning. Okay, so there are certain things which are given. That is point number 1 to 5. These point number 1 to 5 are already discussed. हमने उसको पहले already discuss किया हुआ. Okay, that is when an agreement is made by incompetent parties. Who is considered as an incompetent person? The person who is a minor or unsound mind, or is of unsound mind, or is or is insolvent, or it is disqualified by law. Second was agreement made under bilateral mistake of fact. हमने कल काफी सारे एग्जाम्पल लिखे थे. Mistake regarding quality, quantity, subject matter, identity of persons, nature of contract. Okay. Agreements, the consideration of object of which is unlawful. Agreement, the consideration of object which is unlawful in parts. इसके लिए मैं कल एग्जांपल दिया था ना कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं बट कंसिडरेशन कॉमन है, या तो एक ही ऑब्जेक्टिव है बट नंबर ऑफ कंसिडरेशंस है. ओके, तो इन दैट केस अगर कोई भी एक पार्ट भी अनलॉफुल हुआ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. अगर वो सिवियरेबल है, मतलब लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट को अलग कर सकते हैं, तो लीगल पार्ट वुड बी एनफोर्सेबल, इलीगल पार्ट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल. बट अगर उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि इफ somebody does 4 types of work, 4 अलग अलग काम करता है जिसमें से 3 लीगल है और 1 इलीगल है, पर इसके लिए कंसिडरेशन कॉमन है. ओके, देन इन दैट केस द agreement of the contract would be void. Number 5 was agreement made without consideration. No consideration, no contract ऐसा कहा जाता है इसको. और इसके एक्सेप्शंस भी देखे थे हम लोगों ने. ओके, कि कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 6th पॉइंट, that is agreement in restraint of marriage. Agreement in restraint of marriage. आप किसी की मैरिज करने की विलिंगनेस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते हो. रिस्ट्रेंट का मतलब होगा रिस्ट्रिक्शन. यू आर नॉट अलाउड टू पुट restrictions on the willingness of marriage of anybody unless and until that person is a minor. अगर माइनर है और अगर आपने उसको शादी नहीं करने दी तो वो वैलिड है. बट अगर वो मेजर है, ओके, और आप उसको शादी करने से रोकते हो या कोई भी ऐसी कंडीशन पुट अप करते हो जिसकी वजह से वो इंसान शादी करने से मना बोलता है, then in that case such type of agreement would be void. यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है. If a person being a major agrees for good consideration not to marry, है ना, वो कभी भी शादी करने के लिए मना बोलता है, then the promise is not binding, okay, and considered as void agreement. ये प्रॉमिस बाइंडिंग माना नहीं जाएगा. ओके, आप कौन सा रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते हो? यू कैन पुट इट डाउन. लिखो चलो. Which type of restrictions cannot be put? Number 1, restriction on freedom. Restriction on freedom
of getting married or selecting a partner of choice or selecting a partner of choice. Okay. Number 2, promising not to marry at all. Promising not to marry at all, or not to marry for a few years. Not to marry for a few years. There is one exception to this thing. If your employer puts a condition that I will keep you as an employee, or I will give you the employment only on a condition that you stay in our company for 2 years. Meanwhile, you are not going to get married. Okay, आपको हमारी कंपनी में 2 साल रहना पड़ेगा और इन 2 साल में आपको शादी नहीं करनी है. Okay, if in case you want to get married, then you will have to leave the job. Okay, तो मतलब मैं उसको completely शादी करने से मना नहीं बोल रहा हूँ. Okay, सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको 2 साल हमारी कंपनी में रहना पड़ेगा बिना शादी किए हुए. ज्यादातर फीमेल के केसेस में ऐसे कंडीशंस रखे जाते हैं. द रीजन इज कि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो और कुछ शॉर्ट पीरियड में शादी हो जाती है एंड यू चेंज योर प्लेस, ओके, तो मे भी कंपनी को लॉस हो सकता है. कंपनी ने आपके पीछे काफी ट्रेनिंग का खर्चा किया होता है. ओके, उसमें कंपनी को आपकी एक्सपर्टाइज का बेनिफिट नहीं मिलता है. फॉर दैट रीजन द कंपनी मे पुट अ कंडीशन, बट दे आर नॉट आस्किंग यू टू नॉट टू मैरी एट ऑल. आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए या हम नहीं करने देंगे. ओके, दे हैव पुट जस्ट अ कंडीशन that you are not supposed to marry meanwhile you are with us. If you want to get married within a period of 2 years, then you will have to leave the job. Okay, so that type of condition would be valid. उसको valid माना जाएगा. 2 केसेस लिखवा है जहाँ पे वो void माना जाएगा. कौन सा केसेस में void माना जाएगा? अगर आपको शादी करने से रोका जाए या अपने चॉइस का पार्टनर जो आपको पसंद है उस इंसान के साथ शादी करने से रोका जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा. ओके, या तो आप किसी को प्रॉमिस देते हो कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा. अगर आप मुझे 10 लाख रुपए देते हो तो मुझे वो प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट सपोज्ड टू फुलफिल दैट प्रॉमिस. ओके, बिकॉज द अग्रीमेंट एज सच इज वॉइड. नंबर 2, agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade. Okay, मतलब आप किसी को भी उसकी जो बिजनेस करने की लिबर्टी है, उसका प्रोफेशन कैरी आउट करने का उसका जो लिबर्टी है, उस पे आप किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते. You are not supposed or you are not allowed to put any restriction on the liberty to do profession, trade or business. Okay, but there are certain exceptions. इसमें सिर्फ एक exception डिस्कस किया हुआ है. Only one exception is discussed. That is selling of goodwill. Okay, अगर आप अपना business, whether it is a proprietary concern or a partnership firm or a limited liability company, then in that case you are selling your business along with your goodwill. आप सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बेचते हो, बिजनेस के साथ अपना गुडविल भी बेचते हो. तो जो खरीदने वाला है वो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख सकता है ताकि वो खुद आपके रेगुलर कस्टमर्स के साथ रेपो बना पाए. ओके, एंड फॉर दैट रीजन दैट बायर वुड पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि आप आने वाले 2 साल तक ऐसा कोई सेम बिजनेस नहीं कर सकते हो, या तो आप कुछ स्पेसिफाइड
लोकल लिमिट्स में इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हो. ओके, बट one thing to be noted is that whatever restrictions are being put, जो खरीदने वाला है वो बेचने वाले पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रखता है, तो जो भी रिस्ट्रिक्शन रखे जाने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए. ओके, किस तरह के होने चाहिए? The restrictions that are going to be put should be reasonable. अगर वो reasonable होगा then it will be treated as valid. इतना ही जानना है. ओके, बाकी सब आपको पता है गुडविल क्या होता है, गुडविल का बेनिफिट क्या होता है ना. इसमें एक शायद नया वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आए. इट्स अ पब्लिक पैट्रोनेज. तो पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोनेज? चलो बताओ जल्दी. नहीं पता है तो लिखते हैं. पैट्रोनेज का मतलब लिखो सपोर्ट. आपको अपने कस्टमर्स का कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता है गुडविल की वजह से, है ना. अगेन second example, but an agreement of service by which an employee binds himself during the term of his agreement not to compete with his employer. ये तो आप जब भी कहीं पे जॉब करने जाओगे, अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहां पे आपके पास से इस तरह का अग्रीमेंट करवाया ही जाता है कि जब तक आप हमारी कंपनी में एम्प्लॉई है आप हमारे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते. और वो बात ऑब्वियस है, नेचुरल है कि आप हमारे सीक्रेट्स जान के हमारे ही साथ कंपटीशन करोगे, ऐसा नहीं चलेगा. ओके, आफ्टरवर्ड्स यू कैन डू दैट. ओके, प्रोवाइडेड यू आर नॉट मेकिंग अ कॉपी ऑफ देयर पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स. ओके, आप जॉब छोड़ने के बाद कंपनी के साथ कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ जॉब इन अ पर्टिकुलर कंपनी, और वो कंपनी को मैन पावर की जरूरत रहती है ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. ओके, उस कंपनी का काम मोस्टली साइट पे होता है, मतलब कंपनी को ऑफिस बना के रख दिया है ना, एक छोटा सा ऑफिस बना के रखा हुआ है, पर ज्यादातर लोग कंपनी पे जाके काम नहीं करते, मतलब कंपनी की ऑफिस पे जाके. कंपनी ने कई सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर लिए होते हैं, तो आपको साइट पे जाके काम करना होता है, और उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, बट वो मैन पावर आप परमानेंट बेसिस पे रखना नहीं चाहते, यू वांट टू कीप इट ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. ओके, मुझे ये पता चला कि मैंने, मतलब मेरी जो कंपनी है उसको मैन पावर की जरूरत है. आई एम द HR मैनेजर ऑफ कंपनी. ओके, so what I did was I invited tenders from manpower supplying agencies. जो भी लोग मैनपावर सप्लाई कर सकते हैं उनके पास से मैंने टेंडर मंगवाया कि आप कितनी प्राइस में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस वाला और एजुकेशन वाला एम्प्लॉई हमें सप्लाई कर सकते हैं, कि जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए और उसको मिनिमम इस पर्टिकुलर फील्ड का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप वो हमें कितने में प्रोवाइड करोगे. ओके, अलग अलग लोगों से कोट आया. अब इसमें HR मैनेजर को लगा कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और मैं अपना खुद का फर्म स्टार्ट कर देता हूँ और मैं ही अलग से मेरा टेंडर सप्लाई करता हूँ. ओके, तो इन दैट केस इट हैपेंड दैट कि मुझे तो कंपनी ने मना बोला है कि आप हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो जब आप जॉब कर रहे हो. तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को कहा कि तुम एक फर्म बनाओ, ओके, और उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ एज अ मैन पावर सप्लाई एजेंसी, और फिर तुम कंपनी को मैं जो प्राइस कहूँ उस प्राइस पे टेंडर दे दो, कंफर्म तुम्हें टेंडर मिलेगा, बट उसमें से मिलने वाला जो भी प्रॉफिट है उसका 90% मेरा और 10% तुम्हारा. द रीजन इज कि पूरा दिमाग मैं लगाने वाला हूँ, मैन पावर भी मैं लाने वाला हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहिए,
उसके लिए मैं तुम्हें हर साल 10% देने के लिए रेडी हूँ, एंड इट गॉट डन. बट लेटर ऑन द कंपनी फाइंड्स आउट दैट in the name of my friend I was doing business. Okay, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे वो सारे वॉइड माने जाएंगे, और शायद अगर मुझे कंपनी से कुछ पेमेंट लेना बाकी है, मतलब एज सच तो मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहा है, पर अल्टीमेटली पैसा तो मुझे ही मिलने वाला है, देन दैट आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड अग्रीमेंट. वो पैसा आप कंपनी से रिकवर नहीं कर पाओगे. इस तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं एमएनसीज में. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. बी अ फिजिशियन एंड सर्जन एम्प्लॉयज ए एज एन असिस्टेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. हम कई सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक में देखते हैं कि कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जॉब करने के लिए आते हैं. तो बी ने अपने वहां ए को एम्प्लॉय किया, बट एक कंडीशन के साथ कि तुम अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक 3 साल तक स्टार्ट नहीं करोगे. You are not allowed to open an independent clinic for a period of 3 years. Then such agreement would be valid. अगर A किसी भी तरह से अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन करता है, then B can file a injunction, stay order. वो कोर्ट में किस चीज के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दे सकता है. नेक्स्ट इज an agreement by a manufacturer to sell during a certain period his entire production to a wholesale merchant is not in restraint of trade. It is my liberty to whom I want to sell. तो मैंने अपना पर्टिकुलर पीरियड का पूरा प्रोडक्शन किसी एक पार्टी को बेच दिया तो वो गलत नहीं होगा. ओके. Agreement among the sellers of a particular commodity not to sell the commodity for less than a fixed price is not an agreement in restraint of. आपने कहीं देखा है इसका एग्जाम्पल? Have you ever seen? Yes sir. कहाँ पे देखा है? सर वो मेरे अंकल, उनका ना प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों का है. Okay. तो फिर वहाँ पे ऐसा होता है. Fine enough. इसके अलावा ऐसा हर एक बिजनेस में पॉसिबल है ना. हम बार्बर की शॉप पे जाते हैं, ओके, सैलून में जाते हैं, तो वहां पे एक रेट चार्ट होता है, ओके, एंड दे राइट दैट दिस रेट चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द बार्बर्स एसोसिएशन. ओके, तो एक उन लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि हम ये पर्टिकुलर सर्विस देंगे तो इससे कम प्राइस पे नहीं देंगे. इसके अलावा ऑटो रिक्शा में होता है ऐसा कि नहीं होता है? सर टूरिज्म में भी होता है ना. टूरिज्म में होता है, यस. आप कहीं पे घूमने गए हो, है ना, गोवा में खास करके होता है. दैट इज व्हाट आई, है ना, वहां पे ओला या उबर नहीं चलता है, टैक्सी, है ना, वहां पे उनका लोकल यूनियन है. Yes. So such type of agreements would not be considered as in restraint of trade. So that was the second point. इसमें आपको कई सारे एक्ट दिए हुए हैं जहां पे अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को वैलिड माना गया है. ओके, ट्रेड कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो अमालगमेशन या मर्जर. ओके, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी देखा था हम लोगों ने. कुछ एग्जांपल बताओ, किसी को याद हो तो. सर वो टाइम बार डेट वाला. टाइम बार डेट वाला, यस. ओके, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, मैं बता देता हूं, पहले आप पढ़ लेते हैं फिर आगे डिस्कशन करते हैं. ओके, एन एग्रीमेंट इन restraint of legal proceeding, we can simply write defeating the provisions of law. क्या बोलेंगे? defeating the provisions of law. So
any such agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights. आपको आपका अधिकार इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, ओके, देन सच टाइप ऑफ अग्रीमेंट वुड बी वॉइड। या तो आपको अपना राइट यूज नहीं करने दिया जा रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अब्रिजेस द यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्रिजेस? अब्रीज करना मतलब स्टॉप, सीज। अब्रीज करना मतलब टू शॉर्टन, किसी भी चीज को छोटा करना। मतलब हम बोलते हैं ना अब्रीज्ड बैलेंस शीट, ओके। तो जब भी हम अब्रीज्ड बैलेंस शीट बोलेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये बैलेंस शीट पूरा नहीं है, मतलब इन डिटेल नहीं है। इट मे बी हैविंग ऑल द डिटेल्स, मतलब करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, उसका नाम लिखा होगा, टोटल अमाउंट लिखा होगा, पर उसमें डिटेल नहीं दिया होगा, ओके। इट इज कॉल्ड अब्रीज्ड बैलेंस शीट। तो अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स का जो यूजुअल पीरियड है उसको शॉर्टन कर रहे हो, ऐसा कब होता है? लिख सकते हैं इट हैपेंस इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कि आपने किसी को गुड्स बेचा है तो आपके पास राइट है, यू हैव अ राइट टू फाइल अ केस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, ओके। बट अगर किसी एक अग्रीमेंट को करके हम इस पीरियड को 3 साल से लेकर 2 साल तक लेना चाहते हैं, हम इसको शॉर्टन करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। लॉ में जो भी यूजुअल पीरियड लिखा हुआ है उसको हम कम नहीं कर सकते, ओके। या तो डेटर क्रेडिटर को प्रॉमिस करता है कि आपका डेट टाइम बार्ड हो जाएगा, तो भी मैं जो मेरा लिमिटेशन का बेनिफिट है वो यूज नहीं करूंगा, आई विल नॉट यूज द बेनिफिट ऑफ लिमिटेशन। देन इन सच केसेस इट इज कंसिडर्ड एज void agreement. Is it okay? या तो उस पीरियड को शॉर्टन करना या तो उस चीज का बेनिफिट ना उठाना, ओके। मुझे किसी ने चेक दिया हो और उसको 3 महीने का टाइम बीत गया, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, ओके, और बाद में मैं वो पैसा रिकवर करने जाता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, ओके, बिकॉज इट इज टाइम बार्ड। क्या हो गया? It is time bar. Okay. Yes. सर क्रेडिटर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करता है अपने विल पे, तो फिर वो वॉइड नहीं होगा ना? नहीं, फिर वो वॉइड नहीं होगा। देखो सर, तो कौन से केसेस में वो अपनी विल पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता है? उसकी चॉइस है ना। मतलब सी फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है जिसने मुझे 1000 रुपए नहीं दिए, हाँ, ओके, तो मैं उसको भूल जाऊंगा। अभी उसके लिए मैं केस तो नहीं करने जाऊंगा ना। हाँ, लॉजिकली देखो तो 1000 रुपए के लिए आप केस नहीं करोगे। यस। इवन द कोर्ट ऑफ लॉ वुड से यार इतना बैड डेट तो हर एक बिजनेस में होता है, छोड़ो इसको, है ना। अननेसेसरी कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो। और आपको भी पता है कि मैं अगर ये करने जाऊंगा तो मेरा 1000 रुपए आएगा, तब की बात तो तब है, पर उसमें जो कोर्ट केस को लड़ने में जो खर्चा होगा वो 1000 रुपए से कहीं ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कई सारी बात हम हमारी कोर्ट ऑफ लॉ की जो प्रोसीडिंग्स है ना, उसकी जो लेंथ है उसको समझ के ही हम मना बोल देते कि नहीं जाना है इसमें। There may be many cases, बट आप अपनी विलिंगनेस से केस फाइल नहीं करते हो तो वो वॉइड नहीं है। कोई आपको केस फाइल नहीं करने दे रहा है तो वो वॉइड है, ओके। नाउ अभी जो रिसेंटली केस लॉ चल रहा है ना, मिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का, ओके। सो इन दैट केस इलेक्शन हुआ था 2017 में, ओके। गुजरात असेंबली के इलेक्शंस हुए थे 2017 में, आउटकम आया है 2020 में, ओके। उस प्रोसेस साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं और अभी भी वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा,
Okay, let's take another 5 to 6 months for Supreme Court final judgment. तो उसने अपने 5 साल की पीरियड में से 3.5 साल तो मतलब अपना जो भी उसको पावर का यूज करना था वो कर लिया. ओके, है ना? बिकॉज ऑफ मतलब जिसने भी केस फाइल किया उसने इस इंप्रेशन के साथ केस फाइल किया था कि इसका जल्दी से जल्दी आउटकम आ जाएगा और मैं वापस जो हारा हुआ इंसान है वो ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं जीत जाऊंगा ऐसा. तो कोर्ट ने दोनों तरफ से ऐसा बोल दिया कि जिसने मिसचीफ करके इलेक्शन जीता था वो तो जाएगा ही जाएगा, उसका जो मिनिस्टरशिप है वो भी गया, पर जो लूजर था उसको हम विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते, इलेक्शन फिर से होगा, लाइक दैट. तो ये सोच के भी आप लोग नहीं करोगे कि यार मुझे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, लेट इट बी. देयर कैन बी सेवरल थिंग्स. ओके, नंबर 2 सॉरी नंबर 1 अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, ये एक्सेप्शन है. ओके, ध्यान रखना, मतलब in these two cases the contract would be valid. A contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration. मतलब हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे. तो वो गलत नहीं है क्योंकि वो दोनों ने डिसाइड किया है ना. इसमें से ऐसा नहीं है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा और तुम्हारे साथ गलत हो तो तुम आर्बिट्रेशन में ही जाना. वी आर नॉट एंटरिंग इनटू सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो वो अपना प्रॉब्लम किसको रेफर करेगा, आर्बिट्रेटर. ओके, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम एन आर्बिट्रेटर. ओके, आप सीए फाइनल में इसके रिलेटेड लॉ पढ़ने वाले भी हो और सीए बनने के बाद इसका एक छोटा सा एग्जाम भी होता है. ओके, यू कैन बिकम एन आर्बिट्रेटर एट अ डोमेस्टिक लेवल और एट एन इंटरनेशनल लेवल एज वेल. ओके, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए. okay? आप किसी को मना सको, किसी को समझा सको. ओके, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सको. ओके, बिना किसी को फेवर किए अगर आप अपना काम कर सकते हो देन यू कैन बिकम अ गुड आर्बिट्रेटर. ओके, सिमिलरली अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच द पार्टीज अग्री टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन बिटवीन देम व्हिच हैज ऑलरेडी अराइजन और व्हिच मे अराइज इन फ्यूचर इज वैलिड, बट सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग. ओके, जो भी आप आर्बिट्रेशन में जाने का है ना, आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट दैट? आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? किसी को पता है? दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव फील्ड. चलो बता देता हूं. हम जो भी लॉ पढ़ते हैं, ओके, तो उसके जो उसका जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है, उसका जो नॉर्मल मीनिंग है, ओके, कई सारी बार ऐसा होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उससे डिफर कर सकती है. आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ा और आपको लगा कि इसका मीनिंग ये है और वो सोच के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बट उसका एक्चुअल मीनिंग अलग था. ओके, तो यहाँ पे फाइट अराइज होगा. ये दो पार्टी हैं कॉन्ट्रैक्ट में और एक का अंडरस्टैंडिंग और दूसरे का अंडरस्टैंडिंग किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अलग अलग है. ओके, या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई लॉस अराइज हुआ और यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन लॉस बेयर करेगा, सेलर या बायर. तो आप इस केस में कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो. कोर्ट ऑफ लॉ कहेगा इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एप्लीकेबल होगा एंड द मैटर गोज ऑन. फिर सारे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, बातें कलेक्ट की जाएंगी और फाइनल डिसीजन आएगा. अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप वापस आप उससे हायर कोर्ट में जाओगे. ओके, ये सब प्रोसेसेस में अगर ना पढ़ना हो तो आप
किसी एक थर्ड पार्टी के पास जा सकते हो जो निष्पक्ष है ना, इनडिफरेंट है, जिसको आप दोनों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी फीस से मतलब है, और वो आपको इसका सही इंटरप्रिटेशन बताएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या लॉ में लिखा हुआ है उसका ये मीनिंग बनता है, और सेलर लॉस बेयर करेगा, बायर नहीं बेयर करेगा, या बायर लॉस बेयर करेगा, सेलर नहीं बेयर करेगा। और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ जजमेंट पास कर दिया, ओके, उसने दोनों को समझाया, ओके, जो विनर है उसको भी और जो लूजर है उसको भी समझाया, ओके। तो दोनों को सेटिस्फेक्शन लेवल पे लाके काम करना, दैट इज द वर्क ऑफ आर्बिट्रेटर, ओके। तो उसके लिए है ना, एज आई सेड, the main thing that you need is knowledge of law and the other thing is communication power, okay? अगर आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिससे आप एक दूसरे के बीच अराइज होने वाला कोई भी डिस्प्यूट है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में न लेके जाके आप आर्बिट्रेटर के पास लेके जाते हो, then such type of agreement would be valid, okay? Number 4 is agreement the meaning of which is uncertain. ये भी हमने पढ़ा था, है ना, ऑफर के केस में पढ़ा था कि ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन हो, ओके, देन सच टाइप ऑफ अग्रीमेंट वुड बी मेड, ओके। या तो उसको हम मतलब या तो सर्टेन है नहीं या उसको सर्टेन कर नहीं सकते, the one which is uncertain or one which cannot be made certain, okay, then it can be said that it is void. but अगर आपको भले उसमें clearly ना लिखा हो, it is not clearly mentioned as to which type of agreement is it, okay, but you can make out, आप पता कर सकते हो तो वो certain है, okay। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है that I want to sell 100 tons of oil but which type of oil not given, तो ये कैसा हुआ, अनसर्टेन हुआ, ओके, और इसलिए वो क्या हो जाएगा, void। बट अगर बी को पता है कि ए सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है, तो भले ए ने क्लियरली ना लिखा हो पर बी उसको सर्टेन तो कर सकता है ना कि ए सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है, तो द ऑब्वियस थिंग इज द ऑयल दैट ही इज रेफरिंग टू और शी इज रेफरिंग टू इज कोकोनट ऑयल ओनली। बट तो वॉइडेबल होगा ना? नहीं, वॉइडेबल नहीं है, वैलिड होगा ये। वॉइडेबल कब होता है, आप उसको बराबर ध्यान में रखो, व्हेन इट इज वॉइडेबल, जब फोर्सफुली करवाया हो कोई काम, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू करवाया हो, मैंने फ्रॉड किया हो या मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो। यहाँ पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या ऐसा कोई चीज नहीं है कि मैंने कहा कुछ और किया कुछ, ओके, इट इज नॉट दैट। द कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड क्योंकि आप पता कर सकते हो कि वो किस तरह के ऑयल की बात कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक। वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब ये होगा कि जब दो पार्टी किसी एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को कंसिडरेशन में रख के आउटकम डिसाइड करते हैं और क्या एक्सचेंज करना वो डिसाइड करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन टू पार्टीज in consideration of a future uncertain event, okay, decide the outcome, and upon the outcome who will pay and who will receive, that is decided, तो उसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहा जाएगा, ओके। इसका एक एग्जांपल पढ़ोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। A agrees to pay ₹50,000 to B if it rains, अगर बारिश होगी तो ए बी को पैसा देगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो बी ए को पैसा देगा, ओके। दिस इज अ फ्यूचर इवेंट, ओके, वेदर इट इज सर्टेन और अनसर्टेन।
ये सर्टेन है या अनसर्टेन है? Uncertain. अनसर्टेन है। इसमें दोनों जीतेंगे या कोई भी एक ही जीतेगा? कोई भी एक ही। कोई भी एक, बट चांसेस दोनों के हैं या किसी एक के हैं? दोनों के। दोनों के। दैट्स इट। आप इसका डेफिनेशन समझ गए। ओके, तो एसेंस ऑफ अ वेजर is each side should stand to win or lose. ओके। दोनों पार्टी को जीतने का या हारने का मौका है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द वे an uncertain event takes place. ओके, आप जिस किसी भी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ओके, फ्यूचर इवेंट होना चाहिए और अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। Okay, and in the occurrence of which neither of the parties has legitimate interest.